Hello students, welcome to another lecture of the topic units and measurement. Today we are going to discuss about the estimation of errors. In our previous lecture we have discussed about what are errors and what are different types of errors. Just we'll have a brief recap of it. Now in physics, measurement is a foundation of all experimental science. जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट क्या आता है, मेजरमेंट. अब ये मेजरमेंट हम लेने के लिए वी हैव टू यूज वर्ड सम मेजरिंग डिवाइसेस. दिस मेजरिंग डिवाइसेस मे हैव सर्टेन लिमिटेशंस एंड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द मेजरिंग डिवाइसेस, because of the limitations of the person who is involved in this measurement, and due to some uncertain causes, there can be a difference between the measured value and true value, and that difference between the measured value and true value is called as what? Error. Measured value और true value में जो डिफरेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं? एरर. Now why do this error arises? The errors arises because of the limitation of the instrument. It might be an improper experimental technique. There can be errors like personal errors, like parallax error. There can be random errors. There can be an errors due to the factors which we can't control. Like we can't control the room temperature, the movement of the air in the room. It may affect the various readings. The limitation of instrument itself gives us some sort of errors in the measurement. तो इस एरर को कम करने के लिए या ट्रू वैल्यू पहचानने के लिए हमें क्या करना है? वी मस्ट टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स. अपन रीडिंग्स वाढवायचे और रीडिंग्स जब हम बढ़ाते हैं तो उसका एवरेज निकालने का. क्योंकि अगर मान लो कोई मुझे फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है, कि मान लो मुझे इस पेन का डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? आई विल फाइंड द डायमीटर दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट. During every measurement there is a possibility that I may overestimate the value and underestimate the value. The best possible way is what? You take the number of readings and find average of it. The arithmetic mean can be considered very close to what? True value. मान लो मुझे मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं एंड इन द एक्सपेरिमेंट आई वांट टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. मुझे एक बोल दे हैव गिवन मी अ स्टॉप वॉच एंड दे आर आस्किंग मी द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. Now how to minimize the error in this case? एक तो आप एक कर सकते हैं कि instead of finding the time taken to complete one oscillation, I will find the time taken to complete 10 oscillations and then divide it by 10 to get the time taken to complete one oscillation. And this I will repeat it for 5 times, 6 times, 7 times, as much as time I can. And after obtaining different readings, I will take the average of all these readings. And the arithmetic mean is regarded as the closest value to the true value. यानी अगर कोई मैं रीडिंग लेता हूं और वो रीडिंग्स आ रहे हैं A1, A2, A3, डॉट 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 AN. N क्या है? नंबर ऑफ रीडिंग्स दैट आई हैव टेकन. कोई तो फिजिकल क्वांटिटी में मेजर कर रहा हूं और मैंने सेवरल मेजरमेंट्स लिए हैं, सेवरल मेजरमेंट्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AN. देन आई विल फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज. A1 plus A2 plus A3 plus dot 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 divided by N. This is called as what? A mean. तो मैं ये मान कर चलूंगा कि जो मैंने मीन वैल्यू कैलकुलेट की है दैट इज वेरी क्लोज टूवर्ड द ट्रू वैल्यू. क्लोजेस्ट वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू विल बी टेकन एज व्हाट? ए मीन. इसे लिखने का एक तरीका है ए मीन इज इक्वल टू 1/n. ये जो है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN, ये क्या है?
ये समेशन है, ये एडिशन है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल सिग्मा AI, where I goes from 1 to n. What is meaning of this symbol? ये symbol का meaning क्या है? ये इसका meaning है summation. It's a Greek alphabet. It's a Greek symbol. इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा. यहां से I इक्वल टू 1 यानी A1 से स्टार्ट करना है और यहां तक n लिखा है यानी n तक एंड करना है. अगर मैंने मान लो ऐसा लिखा समेशन ऑफ AI वेयर I गोज फ्रॉम 1 to 3, तो इसका मीनिंग क्या रहता है? इट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3. गॉट इट? सो दिस मीन वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड एज द ट्रू वैल्यू. And why we can say that the mean value is nearly a true value? Because it's reasonable to suppose that the individual measurements are likely to overestimate and underestimate the true value of the quantity. कोई वैल्यूज ट्रू वैल्यू से ज्यादा रहेंगे, कोई वैल्यूज ट्रू वैल्यू से कम रहेंगे. जब हम एवरेज लेंगे तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो हमें मीन वैल्यू आ रही है वही अपनी ट्रू वैल्यू है. यानी अगर आपको एग्जामिनेशन में 5 वैल्यूज दिए और अगर पूछा कि फाइंड द ट्रू वैल्यू of the physical quantity that has been measured, then just find the arithmetic mean. The arithmetic mean gives us what? The true value. Okay. अब मेरे ये रीडिंग से A1, A2, A3 dot 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 AN. अब what is my A mean? What does my A mean stands for? My A mean stands for the true value. Okay. तो बोलो मुझे what is A1 minus A mean? A1 minus A mean is the difference between the measured value and true value in first reading. A1 is what? The measured value in my first reading. What is A1 minus A mean? A1 minus A mean is the difference between measured value and true value. और इसे हम क्या कहते हैं? Error. अगर मैं सिर्फ इसकी absolute value ले रहा हूं, then this is called as what? Absolute error in first reading. Absolute लेना है. मान लो अगर ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर है और मैंने रिकॉर्ड किया है 5.1 सेंटीमीटर, तो एरर कितना हुआ? 5.1 माइनस 5, ये कितना हुआ? 0.1. तो एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. मान लो मैंने रिकॉर्ड किया 4.9 सेंटीमीटर, तो एरर कितना हुआ? 4.9 माइनस 5, तो ये आता है माइनस 0.1. लेकिन जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं, वी मस्ट टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू. दैट मीन्स वी मस्ट नॉट कंसिडर नेगेटिव साइन, वी मस्ट राइट ओनली व्हाट? द पॉजिटिव वैल्यू 0.1. तो आपका A1 माइनस A मीन पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर. सो व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी is called as the absolute error of the measurement. और हम वो कैसे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट बाय डेल्टा ए. अगर मैंने डेल्टा A1 लिखा यानी क्या? एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग. डेल्टा A2 लिखा यानी एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग. ये सिंबल क्या है? ये जो 2 बार्स में लिख रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं? मॉड ऑफ. मॉड ऑफ यानी क्या? जस्ट कंसिडर द वैल्यू. केवल मूल्य लेना है, उसका साइन लेने का नहीं. दैट इज एब्सोल्यूट एरर. नाउ वंस यू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट एरर,
then you find the average of these absolute errors. How to find the average of absolute error? तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइडेड बाय n. डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा n divided by n. Obviously all are what? Absolute values. This is called as mean absolute error. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे mean absolute error. ये क्या है? mean absolute error. यानी एस्टिमेशन ऑफ एरर में फर्स्ट स्टेप अपनी क्या रहती है? फर्स्ट फाइंड व्हाट? द मीन वैल्यू. After finding out the mean value, what you determine? You determine the absolute error. After finding out the absolute error, what we determine is what? Mean absolute error. What is meaning of mean absolute error? It is the arithmetic mean of all absolute errors. Now, this particular part, mean absolute error, को हम symbol form में कैसे लिखेंगे? इसके लिखेंगे summation of delta AI, where I goes from 1 to n, and you are dividing it by what? N. So what I get is what? Mean absolute error. Estimation of error करते समय first हमें क्या find out करना है? First we have to find what? The mean value. That mean value will be considered as what? True value. Then difference between the measured value and true value is called as what? Absolute error. The average of all this absolute error is called as what? Mean absolute error. And when we find out the mean absolute error, then the ratio of mean absolute error, the ratio of the mean absolute error to true value, that is what? The mean value is called as relative error. So how will you define relative error? The relative error is the ratio of mean absolute error to the mean value of the quantity that has been measured. तो एस्टिमेशन ऑफ एरर में पहला पार्ट क्या आता है? मीन वैल्यू. मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है? फाइंड आउट द एवरेजेस ऑफ ऑल द वैल्यूज. सेकेंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर डिटरमाइन करने के बाद हमें क्या डिटरमाइन करना है? मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू हमें क्या देती है? रिलेटिव एरर. एंड इफ दिस रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100, we get percentage error. So what is percentage error? Delta A mean upon A mean multiplied by what? 100. Okay, got it? So you just go through this, all this part, and make the notes of your own. What is meaning of mean value? What is meaning of absolute error? What is meaning of mean absolute error? What is meaning of relative error? And what is a percentage error? से physics में measurements में absolute error से भी relative error ज़्यादा अहमियत रखता है. वो क्यों? I will explain it with one example. ओके, नाउ टेक दिस एग्जाम्पल कि क्यों रिलेटिव एरर का सिग्निफिकेंस क्या है. कि मान लो मैंने किसी लड़के से पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ दिस पेन. इस पेन की लेंथ डिटरमाइन करो. मान लो इसकी जो ट्रू वैल्यू है, इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो है 12 सेंटीमीटर. ओके, और उसने बोला, उसने मेजर किया और उसने रिकॉर्ड किया 13 सेंटीमीटर. ओके, एक पेन की लेंथ थी, एक पेन था, पेन की लेंथ फाइंड आउट करने को कहा था मैंने. तो इसकी ट्रू वैल्यू थी 12 सेंटीमीटर.
और उसने मेजर्ड कितना किया 13 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बोलो इसका एब्सोल्यूट एरर कितना है। इसका एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ 1 सेंटीमीटर, बराबर है। इट इज व्हाट मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, 13 माइनस 12 हो गया 1 सेंटीमीटर। अब एक है कि मान लो मैंने किसी लड़के से पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोल्स that are fitted on a street लाईटचे हे 2 पोल्स आहेत आणि ते मी फाइंड आउट करायला सांगितलं। इसकी जो ट्रू वैल्यू थी वो थी 30 मीटर। ओके, ट्रू वैल्यू कितनी थी? ट्रू वैल्यू वाज 30 मीटर एंड ही रिकॉर्डेड इट एज, उसने रिकॉर्ड किया 3001 सेंटीमीटर। कितना रिकॉर्ड किया उसने? 3001 सेंटीमीटर। 300 मीटर यानी कितना हुआ? 30 मीटर यानी कितना हुआ? 3000 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रीट लाइट्स? 30 मीटर यानी 3000 सेंटीमीटर। और बंदे ने कितना मेजर किया? 3001 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बोलो सेकेंड केस में एब्सोल्यूट एरर कितना हुआ? 3001 सेंटीमीटर माइनस 3000 सेंटीमीटर यानी कितना? 1 सेंटीमीटर। क्या हम ये कहना मुनासिब है कि इन बोथ द रीडिंग्स द सेम अमाउंट ऑफ एरर वॉज देअर? आपण असं म्हणू शकतो का की दोन्ही मेजरमेंट्स मध्ये सारखाच एरर झाला? त्या मुलाला मी ह्या पेनची लेंथ फाइंड आउट करायला सांगितली, जी 12 होती त्यांनी ती 13 सांगितली मला, म्हणजे त्याने 1 सेंटीमीटरचा एरर केला। दुसऱ्या मुलाला मी 2 पोल्स मधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करायला सांगितलं, त्या पोल्स मधलं डिस्टन्स होतं 30 मीटर म्हणजे 3000 सेंटीमीटर आणि त्यांनी सांगितलं 3001 सेंटीमीटर। आता तसं पाहायला गेलं तर दोघांचा ऍब्सोल्यूट एरर 1 सेंटीमीटर आहे, पण हा 1 सेंटीमीटरचा एरर त्यांनी 12 सेंटीमीटर मेजर करताना केलेला है, तो उसका रिलेटिव एरर कितना हुआ? 1/12। और इसने जो 1 सेंटीमीटर का एरर किया है वो 3000 सेंटीमीटर मेजर करते समय किया है, यानी उसका रिलेटिव एरर कितना हुआ? 1/3000। नाउ विच वैल्यू इज ग्रेटर, 1/12 और 1/3000? ऑब्वियसली व्हाट 1/12 इज ग्रेटर, यानी पहले लड़के ने ज्यादा गलती की है। उसने दोनों ने 1 सेंटीमीटर का एरर किया था, लेकिन जो पहले लड़के को जो क्वांटिटी मेजर करने को बोली थी वो बहुत कम थी, तो उसमें एरर 1 सेंटीमीटर एक्सेप्टेबल नहीं था, बिकॉज ही डिड एन एरर ऑफ 1 सेंटीमीटर while measuring what 12 centimeter, and here he does an error of 1 centimeter by measuring what 3000 centimeter। दोनों में एब्सोल्यूट एरर सेम है, लेकिन रिलेटिव एरर सेकंड में बहुत कम है, फर्स्ट में ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? रिलेटिव एरर। अगर मैंने आपको बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन चिंचवड एंड निगडी, द डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर, and if you do an error in this measurement of hardly 10 centimeter 20 centimeter, it's acceptable because the physical quantity that was to be measured was what? Very large। लेकिन अगर मैंने आपको डायमीटर ऑफ दिस पेन फाइंड आउट करने को बोला जो लगभग 1 सेंटीमीटर है, और आपने मेजर किया 2 सेंटीमीटर, और आप मुझे बोल रहे सर मैंने भी तो 1 सेंटीमीटर का एरर किया था। आपने 1 सेंटीमीटर का एरर नहीं किया, आपने ब्लंडर किया है। जब हम 1 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करते हैं तो उसमें कितना एरर परमिजिबल बोल सकते हैं हम? 1 मिलीमीटर तक ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं, आपण कोणतीही फिजिकल क्वांटिटी जेव्हा मेजर करतो, तर तुम्ही ती एरर ती क्वांटिटी किती मोठी होती तेही लक्षात घेणं खूप गरजेचं आहे। तुम्ही समजा तांदूळ आणायला गेला, गहू आणायला गेला,
if you go in a market to purchase rice, wheat or sugar, and if that shopkeeper gives you 10 gram less or 10 gram more, it's acceptable. But if you go to a goldsmith, तुम्ही सोनाराकडे गेला, ज्वेलरी शॉप में गए, तो वो आपको 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा नहीं देगा और आप 1 ग्राम कम भी नहीं लोगे. द एरर में सिर्फ एब्सोल्यूट एरर नहीं, दैट एरर वाज डन इन व्हाट मेजरमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हेंस relative error has more significance. And obviously if I multiply relative error by 100, I get what? Percentage error. So your measurement is said to be more accurate provided the relative error in the measurement is what? Very less. अगर आपका परसेंटेज एरर 1% आ रहा है या 0.1% आ रहा है या 0.2% आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपने अच्छे तरह से मेजरमेंट लिए थे. लेकिन अगर आपका परसेंटेज एरर 10% है, 20% है, 30% है, तो ये एरर नहीं हो रहा है, ये तो ब्लंडर हो रहा है. 1%, 2% तक ठीक रहता है एरर. एरर क्या रहता है कि हमें कुछ लिमिटेशंस है एंड वी कांट रीच टू द ट्रू वैल्यू सो प्रिसाइजली, बट वी मस्ट ट्राई टू रीच टू द ट्रू वैल्यू एज मच एज वी कैन. So always remember that the relative error in the measurement must be as less as possible. Now we will solve one example based on this relative error and percentage error. Okay, एक example लेंगे and then you will better understand it. Look at the question. In Ohm's experiment, the value of the unknown resistances are found to be 6.12, 6.09, 6.22 and 6.15 ohm. Calculate the absolute error, relative error and percentage error in the measurement. Okay. तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ध्यान से सुनो. नाउ लेट A1 be 6.12 ohm, A2 6.09 ohm, A3 6.22 ohm and A4 6.15 ohm. ठीक है. The first part हमें क्या करना है? First we'll find out what the mean value. How to find mean value? It is equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 divided by 4. This is equal to 6.12 plus 6.09 plus 6.22 plus 6.15 divided by 4. Okay. Now 2 and 9, 11, 11 and 2, 13 and 18, 1 carried. 2, 4, 5, 24.58 divided by 4. Okay. Therefore A mean की आपकी वैल्यू कितनी आई? चलो कैलकुलेट करो. ये आएगा 6.1450. Now just tell me whether my answer is correct or wrong. Pause the video and think about this. आप खुद कैलकुलेशंस करो और बोलो मुझे कि मेरा आंसर, अगर मैंने लिखा A mean is equal to 6.145 ohm, whether my answer is correct or wrong. Now look at this. By rules or by arithmetic operations of significant figures, considering significant figures, A mean is equal to, अगर हमने ऊपर क्या लिए है? एडिशन लिए है. मैंने आपको एडिशन का एक रूल सिखाया था. क्या था रूल? When we are adding the values, what we must consider? We must consider the decimal places in a number with least decimal places. सब में पॉइंट के बाद 2-2 डिजिट्स है.
ओके तो जो मेरा फाइनल आंसर आता है ना, उसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स मुझे रखने हैं, यानी मुझे सिर्फ 6.14 लेना है। मुझे ड्रॉप क्या करना है? 5। ओके नाउ 5 के बाद कोई नंबर है क्या? नहीं, दैट मीन्स 5 इज फॉलोड बाय व्हाट? 0। इफ 5 इज फॉलोड बाय 0, रूल क्या रहता है? द प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो उसे इवन बनाओ, अगर इवन है तो उसे वैसे ही छोड़ दो। 4 तो अपना इवन है, तो मेरी ए मीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 6.14 ओम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर आपने 6.145 से ए मीन लिया तो आप गलत जा रहे हो, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रूल्स फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर नहीं किया है। मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स का यही सिग्निफिकेंस है कि आपके मार्क्स चले जाएंगे अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कंसीडर किया। चलो अभी इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे द एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। ओके नाउ आई विल टेक द प्लेस, यहां भी लिखता हूं मैं। आई विल फाइंड आउट व्हाट द एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। मैं फर्स्ट फाइंड आउट करूंगा डेल्टा A1। डेल्टा A1 क्या रहता है बोलो मुझे? इट इज A1 माइनस ए मीन। ओके व्हाट इज A1? A1 कितना है? 6.12। मीन कितना है? 6.14। ठीक है, आपका डिफरेंस कितना आया बोलो मुझे? द डिफरेंस इज इक्वल टू 0.02 विथ नेगेटिव साइन। लेकिन क्या हमें नेगेटिव साइन लेनी है क्या? नहीं लेनी है, हमें सिर्फ क्या लेनी है? पॉजिटिव साइन लेनी है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.02। आई बात समझ में? यू डोंट डू 6.12 माइनस 6.14, डू 6.14। बड़े से छोटे, यू सबट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर, दैट्स ऑल। आपको साइन कंसीडर करना नहीं है। तो क्या आप मुझे अभी डेल्टा A2 बोल सकते हो डायरेक्टली? A2 कितना है अपना? 6.09। ए मीन कितना है? 6.14। 6.14 और 6.09 में डिफरेंस कितना है? 0.05। ओके क्या आप मुझे डेल्टा A3 बोल सकते हो? डेल्टा A3 क्या है? A3 कितना है? 6.22। ए मीन कितना है? 6.14। ये कितना आएगा? 0.08। ओके डेल्टा A4 बोल सकते हो? A4 कितना है? 6.15। ए मीन कितना है? 6.14। ये कितना आया? 0.01। सो दिस आर, ये सारे यूनिट्स क्या है? ओम। These are what? The values of absolute error. When they ask you to calculate the absolute error, that means they are asking us to calculate mean absolute error. चलो बोलो मुझे, what is formula for mean absolute error? Mean absolute error denoted by delta AM is equal to what? It is equal to delta A1 plus delta A2 plus delta A3 plus delta A4 divided by what? Divided by 4। ठीक है, चलो डायरेक्टली एडिशन आप बोल सकते हो मुझे कितना आएगा? 2, 5, 7, 8, 15, 116। तो ये कितना हुआ? 0.16 डिवाइडेड बाय 4। 0.16 डिवाइडेड बाय 4 कितना है? 0.04। तो व्हाट इज योर डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू 0.04। Got it? So we first find out the mean value, then we find out the absolute mean। में ये point very important है। I will, because this considering the significant figures लेना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। वी विल कैलकुलेट व्हाट इज रिलेटिव एरर। व्हाट इज रिलेटिव एरर? रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ व्हाट? मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये रहा 0.04
डिवाइडेड बाय 6.14। इसका कैलकुलेशन करो आप, इसका आंसर आएगा 0.0065। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एरर? 0.0065। और इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? नाउ दिस इज योर वन ऑफ द आंसर। आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और क्या पूछा है आपको? परसेंटेज एरर। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज एरर? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 गिव्स अस व्हाट? परसेंटेज एरर, यानी 0.0065 into 100 is equal to 0.65%। ये रहा आपका third answer of the question. Now this particular problem is your textbook problem. आपके textbook में ये 8th problem है from the exercise which I have solved it for you.